ہمارا علی تو وہ ہے جو ایک انگلی پہ باب خیبر اکھاڑ دے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. ہمت ہی نہیں حق علی کا اور کوئی چھین کے لے جائے. اس کے بازو کی پاور کا عالم یہ تھا، تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی. شاخ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا قطع الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے امتزاج. واہ واہ واہ. حق علی کا اور کوئی چھین لے. ہائے ہائے. اتنی ہمت کس میں ہے؟ وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. ایک بندہ بتا دے کہ نماز ابو بکر نے پڑھائی ہو اور علی نیت توڑ کے گئے ہو. ہائے ہائے. واہ واہ. مصلی پہ عمر کھڑے ہو ہائے ہائے. اور علی نے رخ پھیر دیا ہو. واہ. کیسی نماز ہوتی تھی. امام مصلی پہ بیٹھا ہے اور پیچھے اہل بیت کے افراد ہیں. حسن پیچھے ہے، حسین پیچھے ہے، عباس پیچھے ہے، حیدر پیچھے ہے، مصلی پہ عمر ہے، نمازیں ہو رہی ہیں. کتنا دل لگتا ہوگا جب ابو بکر مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہوں گے السلام علیکہ ایھا النبی. جب یہ جملے کہے جاتے ہوں گے خدا کی قسم مجھے بتا تو سکی کہ نبی کے ساتھ آل کا خیال آتا ہوگا کہ نہیں. والا آل ہی جب کہا جاتا ہوگا تو حسن کا خیال ہوگا کہ نہیں، حسین کا خیال ہوگا کہ نہیں. ابے وہ تیرا نظریہ ہے جو یاروں کو لڑا دیتا ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے جو یاروں کو ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے مدینے تک لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ. واہ واہ واہ. دل کے بھگونے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. ہم نے دین کو توڑ مروڑ کے رکھا. صحیح بتاؤں گا، ہضم کر لیں تو سنیں. حقیقت یہ کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے یہ ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھی ہے. ہم نے حضور کے صحابہ سے. واہ واہ. یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا. کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ ابھی سب کی آواز نہیں آئی ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ ان 72 پہ شک اسی کو ہوگا جس کے اپنے نطفے میں شک. اللہ. سیدھی سی بات. کتنے شہید ہوئے؟ کچھ جماعتیں ملتی ہیں جو صرف 2 ہی نام لیتی ہیں پورے 10 دن میں. باقی 72 کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ اور بھی ہے نا، ذکر سب کے کرو نا. سارے تو حسینی تھے، سارے تو حسینی تھے یار. اور جانتے حسین کی فوج کے سب سے بوڑھے سپاہی کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے. حبیب ابن مظاہر. عمر بعض نے 72 سال لکھی ہے اور بعض نے 76 سال لکھی ہے. یہ حبیب کون ہے؟ یہ میرے نبی کا صحابی ہے. کون ہے؟ حضور کے صحابی. صحابی ہے حضور کے. عمر میرے امام کی 6 برس تھی. بعض نے ان کی عمر 14 سال لکھی ہے اس وقت میں اور بعض نے 16 سال. لیکن جانتے ہو کرتے کیا تھے؟ جب حسین مدینے میں چلتے تھے نا 6 سال کی عمر میں، تو حبیب ابن مظاہر 14 سال کی عمر میں پیچھے پیچھے چلتے تھے. جہاں سے امام کا پیر اٹھتا مٹی اٹھاتے، سر پہ ڈال کے اس کو اپنے سر کا تاج بناتے. بات حضور کی چوکھٹ تک آ گئی. محبوب ایک بچہ ہے، عجیب کام کرتا ہے مدینے میں، کوئی ایسا کرتا ہی نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا جب تیرا حسین چلتا ہے نا، یہ جو گود میں بیٹھا ہے شہزادہ، جب یہ چلتا ہے نا تو وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ حبیب کو، بلاؤ حبیب. خبر پہنچی حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے. کسی نے کہا حضور نے بلایا ہے. جو لقمہ جہاں تھا وہیں چھوٹ جاتا ہے. اٹھ کے دوڑے لگ گئی. جو بلانے آیا تھا اس نے کہا ٹھہر یار، رک تو سکی. مجرم کو جب خبر ہوتی ہے کہ تیری شکایت عدالت میں ہو گئی ہے، اس کے پیر کانپ جاتے ہیں. تو ہے کہ مجھ سے آگے جا رہا ہے. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا وہ اور بارگاہیں ہوتی ہے جہاں بلا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے. یہ اس نبی کی بارگاہ ہے جہاں مجرموں کو سینے سے لگا کے عزت عطا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
मसलक आला हजरत। क्या बात है इश्क, वाह वाह वाह। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी मैंने मज़ाहिर पहुँच के हुजूर के पास, हुजूर ने फरमाया अभी इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह, ये कौन है, पहचानते हो? जी कौन है? कहा आपका नवासा है, अली का शेर है। का तुम जानते हो? कहा जी। का तुम्हारी शिकायत लगी है क्या कि जब ये चलते तो तुम पीछे पीछे चलते हो? जी या रसूल अल्लाह। मिट्टी उठाते हो इनके पैर के नीचे की? जी का सर पे डालते हो? कहा जी। हुजूर ने फरमाया क्यों करते हो? हबीब इब्न मज़ाहिर की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे हुजूर मैं ही करता हूँ पूरे मदीने में। कहा हाँ। तो कहने लगे वजह यह है कि पूरा मदीना इनसे प्यार करता है लेकिन मैं हुसैन से इश्क करता हूँ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हुजूर मैं इनसे इश्क करता हूँ। क्या कहने, वाह। आका चूमेगी दुनिया, इनको सूंघेगी दुनिया, इनको सीने से लगाएगी दुनिया, मगर महबूब ये मेरा इश्क है कि इनके कदमों से लगने वाली खाक भी मेरे सर का ताज नजर आती है। सरकार अब जो चाहे सजा दे दे। फिर नबियों का इमाम अपनी जगह पे उठ के खड़ा हुआ है। मेरे सरकार ने बाजू फैलाए, फरमाया मेरे सीने से लग जा, मुझे बता तो सकी जिससे मदीने का जिक्र कर दो वो मदीने के लिए तड़पता है। मेरे हबीब की चौखट पे जो जाए वो उनके मीनार देख कर रोता है। जो उनके रोजे तक पहुंचे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ हाँ, अभी जिक्र मदीने का किया था मेरे भाई इम्तियाज में, कुछ दिन पहले भी गए थे, हुजूर का मदीना देख करके आए हैं। अभी मैंने देखा नहीं है, देखने वालों ने बताया है कि जो मुस्तफा के मदीने में 8 दिन गुजार देते हैं, जब पलट के आते हैं तो इस दर्द से रोते हैं कि लोग जवान बेटे की मैयत पे ऐसे नहीं रोते जैसे मदीने से बिछड़ने वाले उनके रोजे पे रोया करते हैं। वो कहा था किसी ने लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी। हाय, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 यार। या क्या बात है। हाय हाय, वाह सलामत वाह। सलामत। मदीना शरीफ, मदीना शरीफ मैं उस पे उठ के खड़े हो गए, पर मैं मेरे सीने से लग गया। हुजूर ने सीने से लगाया हबीब इब्न मज़ाहिर, फिर अपने एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ लिया, गौर से सुनिएगा, दूसरे हाथ में हबीब इब्न मज़ाहिर का हाथ लिया और यूं मिला के कहा मालिक मैंने इन्हें मिला दिया है, तू कभी जुदा न करना। ये मेरे हुजूर ने कहा था मैंने इन्हें मिला दिया, तू कभी जुदा न करना, कभी जुदा न करना। फिर ऐसी रीत निभाई है हबीब इब्न मज़ाहिर। वो 76 साल का बूढ़ा हुसैन जब मदीने से मक्का चले, खत लिखा यार के नाम, हबीब मैं चल दिया हूँ, दिल करे तो आ जा, मक्का में मुलाकात होगी। मुअर्रिखीन ने लिखा हुसैन मक्का बाद में पहुंचे थे, 76 साल का बूढ़ा मक्के में पहले आ गया था। वाह वाह, ऐसी रीत निभाई है, ऐसी रीत निभाई है। मैंने अर्ज किया कि हुजूर के सहाबा का, हुजूर के अहले बैत का एहतराम हमने हुजूर के सहाबा से सीखा। एक नाम ले दो जिससे इब्लीस के माथे पे पसीना आया, दुनिया उस नाम को उमर कहती है। वाह, क्या नाम है? उमर कौन है? आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। जिस दिन हुजूर की मसनद खिलाफत पे उमर बैठा, शेर भी वहीं खड़ा है, बकरी भी वहीं खड़ी है, एक घाट में पानी पी रहे हैं, लोग हैरत में थे ये तब्दीली कैसे आ गई? शेर बकरी को देख के छोड़ दे, वही नहीं सही। कैसे किसी ने कहा चुप हो जा, कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है। तवज्जो ना, मैं बताने लगा हूं हमने कैसे इश्क सीखा है, कैसे अदब सीखा है। का उमर बैठ गया है। अब शेर में ताकत नहीं जो बकरी को घूर के देख ली है। हम तो खुल के कहते हैं यार, खुल के कहते हैं। किसी राजे महाराजे की कहानी पढ़ के हमारी कहानी का अंदाजा ना लगाना। कोई मुगलिया हाकिम हमारा आइडियल नहीं है। अकबर को पढ़ के इस्लाम ना समझना।
तो नबी के उम्र को पढ़ना पड़ेगा। वाह वाह, क्या कह रहे हैं, पता चलेगा इस्लाम क्या, क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब? फिर पता चलेगा इस्लाम क्या। एक जगह बकरी पानी पी रही है, उसी जगह शेर पानी पी रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। मैं अगर एक हफ्ते का अलग से जीत जाऊं, कलम के कपड़े कॉलम जीता हुआ तो छोड़ो, जो दाएं बाएं गरम केतली की तरह घूमते हैं ना, उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। हलवे लोग, उनके कपड़े, पता नहीं है थाना साहब के साथ रहता हूँ, थाना के साथ रहता हूँ। ये कंडीशन है। उमर वो है जो किसी की वोट से हाकिम नहीं बना है, किसी की भीख से हाकिम नहीं बना है। उमर वो है जिसका इंतखाब अबू बकर ने किया है, वाह, जिसकी खिलाफत में मुहर हैदर कर्रार ने लगाई है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और छीनने का दावा करने वालों, माँ का दूध पिया है तो फिर खुल के बात सुनो। उमर वो है जो मस्जिद में बैठ के खुतबा दे रहे हैं, सामने शहजादे बैठे, अली भी मस्जिद में, हसनैन करीमैन खड़े हो रहे। चाचा उमर को, ये मिंबर आपका नहीं है, मेरे नाना पाक का। हाय हाय, वाह, ये बात कौन कह रहा है? शहजादे। वो कह कैसे रहे? आधी दुनिया के बादशाह से उठ के खड़े हो रहे, उठ के खड़े हो। पूरी जिंदगी झाड़ू लगाना तुम अपने यहाँ के नेता की बैठक में, और एक बार अपनी मर्जी की कह के देखने गए, कान पकड़ निकाले, वोट के दे दिया, अब्बा बना लिया। ये कह देता बंदा। अदब इसे कहते हैं। मिंबर पे मस्जिद भरी है, उमर खुतबे के बीच में है। शहजादों ने कहा उठ के खड़े हो जाइए, ये मिंबर आपका नहीं है, ये मिंबर मेरे नाना जान का है। उठ के खड़े हो गए शहजादे, क्या हुक्म है? कहा कि मिंबर किसका है? कहा आपके नाना का। कि आप खादिम किसके हो? आपके नाना के। कहा ठीक है फिर बैठ जाइए। इतना कहा फिर उमर बैठे, और उसके बाद कहा था लोगों सुन लो, मुझे अली के बेटों ने बैठा दिया है, अब किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो मिंबर से उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, ज़िक्रे शहीद आज़म, शाने हज़रत उमर। वाह 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 वाह, ये वो उमर है, आधी दुनिया का बादशाह उमर। वाह वाह, मैं बता रहा हूँ इन्होंने हुजूर के सहाबा से प्यार किया। क्या कहने है तवज्जो सारे लोगों की। शुक्र है अल्लाह ने सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम सीना पीट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली कहा करते हैं। वाह 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 वाह, है तवज्जो सारे लोगों की। मैं बताऊं सहाबा ने कैसे अदब किया इन शहजादों का, कैसे अदब किया। अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, जब अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले ना, तो शहजादे को कंधे पे उठा लिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, और आप बच्चों को कंधे पे उठा रहे, फरमाने लगे सुने, मैंने इनको हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। जिनको हुजूर ने कंधे पे बैठाया उनको अबू बकर ने कंधे पे बैठाया। सहाबा ने एहतराम किया अहले बैत का। हम भी सहाबा के साथ अहले बैत का एहतराम करते हैं, और अहले बैत के साथ हुजूर के सहाबा का एहतराम करते हैं। खुदारा सच्चे पक्के हुसैनी बनिए, वरना इतना लट फिरेगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सीधी सी बात, चापलूसी मुझे नहीं मिली। पूरा दीन, खुदा की कसम मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। हुजूर के कंधों पे सवारी करने वाले, हुजूर की गोद में बैठने वाले, जिनको कमर पे बैठा के हुजूर ने सजदा लगा किया, उतनी अजमतों वाला हुसैन, इतनी अजमत दुनिया क्या जाने। समझे जरा हुसैनियत क्या है और समझने की कोशिश करें। खाली हुसैन हमारे नहीं, हसन भी हमारे हैं। हम खाली या हुसैन नहीं कहते, हम या हसन भी कहते हैं। वाह वाह, हसन भी हमारे हैं, और जिनके वही बोले बाकी उठ ले। नजराने की भी फिक्र नहीं है, उल्टे पैसे देकर चला जाऊंगा। हाँ, दोनों नारे लगने चाहिए, या हसन या हसन, और जोर से या हसन। सलामत रहे। हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले, वाह, हुसैन वाले भी हैं। किताब सीधी पढ़ा करो, आती नहीं। जितनी फजीलत में रिवायत इमाम हुसैन की है, वो सारी इमाम हसन के साथ। वाह, हसन को छोड़ के, हसन को छोड़ के कोई रिवायत नहीं है, कोई रिवायत नहीं है। नबी जब भी
भी जिक्र करते तो पहले बड़े का नाम वाह फिर छोटे का लेते है। तो बच्चों सारे लोगों की कुश्ती हो रही, दोनों की कुश्ती। हुजूर कह रहे हैं हसन पकड़ो हुसैन की गर्दन, कमर में हाथ डालो, बाजू पकड़ो, इधर से पटको। पर्दे से सैयदा कायनात कहती है अब्बा जी हसन बड़ा है हुसैन छोटा है। आप भी बड़े के साथ होंगे, आपको तो बच्चे के साथ होना चाहिए था। हुजूर के जुमले का फातिमा सब्र कर, अगर मैं हसन को दाव बता रहा हूँ तो हुसैन भी अकेला नहीं है। कहा फिर? कहा मैं हसन को बता रहा हूँ, हुसैन को मेरा जिब्रील बता रहा है। हाय 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 वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह अज़मतें देखे, इनकी शान देखे, वाह किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा के, मदह खाने अहले बैत, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बजाई खानदान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे हसन, क्यों कहा करते हैं सुन्नी दास्तान है। हाय वाह 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 वाह, हसन भी शान वाला है, हुसैन भी, हुसैन भी, जोर से हुसैन भी शान वाला शान वाले। एक हज करने जा रहे हैं, जाने से पहले पूरा वीडियो, जाके भी पूरा वीडियो और आके फिर पूरा वीडियो। हसन हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 हज पैदल किए। हाँ 25 हज। मक्के और मदीने शरीफ का फासला कितना है? 350 किलोमीटर का फासला है। पैदल हज किए दोनों शहजादों ने। कितने? 25। अल्लाह इन शहजादों के सदक़े में हमें भी हुजूर के शहर की गलियां नसीब फरमा दे। 25 हज पैदल फरमाए। एक दिन हज के लिए जा रहे दोनों भाई, कितना प्यार दोनों में था। माफ कीजिएगा, आज तो रत्ती भर जमीन का मसला आ जाए ना, भाई भाई के गले पर रख देता है, कान पर रख के कहता कर साईं, वरना अदालत है कचहरियां जाके देखो, आज भाई भाई के खिलाफ मुकदमा करने पर डटा हुआ है। और इन दोनों भाइयों का प्यार आप जानते हो। हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, ना इत्तेफाकी गुफ्तगू बंद हो गई। इमाम हुसैन ने खत लिखा हसन के पास, भैया जी खत में लिखा है कि नाना ने फरमाया मोमिन को एक दूसरे से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। 3 दिन हो गए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सलाम कीजिए। किससे? इमाम हसन से। बड़ा कौन है? इमाम हसन बड़े और बुला रहे छोटे वाले। खत पहुंचा, वहां भी है टक्कर नहीं थी। भाई ने खत लिखा, बड़ा दौड़ गए, सलाम किया करके दुआ सलाम हो गई, बैठ गए। कहने लगे हुसैन एक बात बताऊं ना? कहा क्या? मैं बड़ा था, तुम छोटे थे, तुम भी तो आ सकते थे ना मुझे सलाम करने। मुस्कुरा के देख के कहते हैं नाना ने फरमाया जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। वाह वाह वाह, आप बड़े तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे पहले आप जन्नत में दाखिल। क्या बात है। ये उनका आपस में प्यार है। और यहाँ होशियार रहा करो ठलुए चाय पीने वालों से। ये चाय भी पीते जहर भी घोलते हैं। कहते वो क्या हो गया भाई तुम्हारे बड़े से? वो कह रहे अरे यार क्या हुआ? तो कह रहा कमजोर छोड़ियो, वकील का नंबर मैं दूं, मेरी पहचान है फला दरोगा से। ये दलाल होते हैं, दलाल। पावर नहीं होती, मैं इन्हें नेता नहीं मानता हूँ। ये दलाल होते हैं, अपने भी काम पैसे देकर कराते, तो ये नेता नगरी नहीं दलाली है। सही बात। कह रहा मेरी पहचान है, कर मुकदमा, तेरे बाप का क्या जाएगा। वो दोनों भाई कचहरी में पूरी जिंदगी में सड़ गए। ऐसे लोगों से होशियार नहीं। दोनों भाई साथ हज करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में साहिल मिल गया। उसने कहा बड़ा परेशान था, मुसाफिर हूँ, कुछ खाने पीने को नहीं है, शहजादों कुछ मिलेगा? दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह देखा, सारे ही उठा के दे दिया। कहा अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? कहा हमारे घर की रीत ये है कि खुद तो फाके रहे, गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। वाह सारा ही उठा के दे दिया। फिर सफर, अब सफर तो दोनों इंसान है, भूख तो इन्हें भी लगनी है ना। जब भूख लगी तो कहते हैं हसन, इमाम हसन से कहते हैं हुसैन भैया नहीं नहीं नुकसान देगी बाबा। कहा भैया भूख लगी है। कहा आगे चलो देखते। एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। इमाम हसन कहते हैं हुसैन का जी भैया, का अंदर जाके देखो कोई है क्या। अंदर गए, बूढ़ी निकली। माई कहा हाँ, का कुछ है? कहा क्यों? कहा कि हम परदेसी है, भूख लगी है, कुछ नहीं। तो उसने कहा बस एक प्याला दूध है। कहो तो ला दूं? फिर मैं ले आइए।
प्याला आया ना, इमाम हुसैन ने उठाया, कहा पहले हसन आप पियो, आप बड़े हो, पहले हक आपका है। पहले इमाम हसन को इमाम हुसैन ने आधा प्याला पियाया, आधा प्याला पी के आधा उन्होंने इमाम हुसैन को दे दिया। जब पी के दूध जाने लगे, बुढ़िया ने कहा, रे शहजादा रुको ना, इतने हसीन चेहरे मेरी नजर में आज तक देखे ही नहीं। क्या कहना, जरा बता तो बता के जाओ, किस माँ के लाल हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो? कहा माँ क्या करेगी? कहा जी करेगा तो मिलने आ जाऊंगी। अल्लाह। फरमाने लगे फिर नाम ना पूछ, कभी मिलने का इरादा हो तो नबी की चौखट पे आ जाना। वाह बता भी देखो शहजादों का कितना अजीम। वाह। का कभी मिलना हो तो नबी की चौखट पे आ जाना, वहीं मुलाकात हो जाएगी। तारीख का बाग है, कुछ दिन बीत गए, एक दिन यही बूढ़ी मदीने शरीफ की गलियों में टहल रही है। इमाम हुसैन की निगाह पड़ गई, पहचान गई ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। जाके कहते माँ मेरी मेहमान नहीं बन जाती? बूढ़ी ने हाथ रखा, देख के कहने लगी शहजादे अरे मैं तो तुझे जानती नहीं, तू है कौन, क्यों लेके जा रहा है? कहा अम्मा तेरी मेहरबानी, मेरी मेहमान बन जा। 3 दिन तक इमाम हुसैन खिदमत करते रहे। जब 3 दिन के बाद जाने लगी, आपने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी। कहा शहजादे ये क्या कर रहे हो? कहा कि हम मेहमानों की इसी तरह इज्जत किया करते हैं। जब बूढ़ी जाने लगी, कहा इतनी बकरियां कैसे लेके जाऊंगी? आप कहते अम्मा अभी तो ये हुसैन का हिस्सा है, हसन का हिस्सा बाकी है। ये कह के इमाम हसन के दरवाजे पे लाए और कहा भैया देखो कौन आया है। इमाम हसन बाहर निकले, दरवाजा खोला, बूढ़ी को देखकर पहचान गए। कहा हुसैन तुमने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। आप कहते मैं बड़ा हूँ, आपने 1500 बकरियां दी, 1500 दिरहम, 2500 बकरियां, 2500 दिरहम। बूढ़ी कहने लगी बच्चों लेके कैसे जाऊंगी? फरमाया परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। उसके अलावा आपने उनके लिए मजदूर करके दिए ताकि वो सामान को उसके शहर तक, उसकी बस्ती तक पहुंचा सके। और जब आप छोड़ के जाने लगे, बुढ़िया कहती अब तो बता दो तुम हो कौन, मैंने तुम्हें जाना नहीं। तब मेरे इमाम ने कहा था अम्मी याद है ना, एक दिन तो परदेसी तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। कहती अच्छा तुम उसी दूध का बदला दे रहे हो? कहा ना मां ये इस दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारा हक था। और रह गई दूध की बात तो कयामत में बताएंगे, हाथ पकड़ के तुझे मैदान महशर से जन्नत तक छोड़ के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, बस रखे आला हजरत। वाह पैसे दे देंगे, टेंशन मत। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ खुदा सलामत रखे। अच्छा तो ये नीचे वाली आवाज खोल दो, नीचे वाली खोल दो, ऊपर वाली बंद कर दो चाहे। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या हुसैन, या हुसैन। कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी उसी नाना के नवासे हैं। इनकी सखावत पे बात करें तो बड़ा वक्त गुजर जाएगा। उससे सखी कौन होगा जिसने 6 माह का सर दे दिया? उससे बड़ा सखी कौन होगा जिसने 18 साल का अकबर दे दिया? उससे बड़ा सखी ला के दिखाओ जिसने कुल कायनात दीन के लिए हटा दिया। माफ कीजिएगा, आज 10 मुहर्रम को हमने ना एक त्योहार बना रखा है। मेले लगते, मेले तमाशे होते, बहन बेटियां बेपर्दा निकल रही है, गैरत नहीं आती। हमारे मर जाने के लिए क्या ये संबल का जो तमाशा भी हुआ है, जो पूरी दुनिया जिस पे थूक रही है, क्या ये कम था? कब आंखें खुलेंगी हमारी? हाँ 5 मुस्लिम बच्चियां पैरों के साथ होटलों में पड़ी गई, क्या ये डूब के मर जाने के लिए काफी नहीं था हमारे लिए? वो रामपुर का हादसा जिसने कसम से रोंगटे खड़े कर दिए, एक मुस्लिम बच्ची ने 100 मुस्लिम बच्चियां गैर कौम के बच्चों के हवाले की। अभी हमारे झगड़े खत्म नहीं हो रहे भी। खुदारा बचाओ बेटी। 10 मुहर्रम के नाम पे क्या नंगे नाच नहीं नाचे जा रहे? कभी मेहंदी के नाम पे, कभी न्याज के नाम पे, कभी डोरी के नाम पे, कभी धागे के नाम पे, कभी चढ़ावे के नाम पे। बताओ कितनी बेटियों के दुपट्टे बचे सरों में? जो बेटियां साल भर में निकलती, 10 मुहर्रम को वो भी निकल गई। कयामत में सैयदा ज़ैनब पूछेंगी ग़रीबान पकड़ के बता, हमने अपने 72 लाशें देखे थे लेकिन किसी ने करबला में हमारे सर के बाल नहीं देखे थे। होश है कुछ हमें? वो ख्याल करो, खुदारा 10
मुहर्रम को तमाशे का दिन ना बनाओ, अपनी ज़ानी अय्याशी का दिन ना बनाना, वरना क़यामत में हुसैन को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। गलत नहीं कह रहा हूं, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तुझे बताऊं, हुसैन कौन, सारे शहीद हो गए, एक एक लाश मेरा इमाम उठा के लाया, 71 लाश उठाई है, अपने खेमे के अंदर आए, बैठे हुए सैयदा ज़ैनब आई, बहन लगती है, बहन है हुसैन की। कौन है बहन? करबला में दो किरदार हैं, एक किरदार को हुसैनी कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनबी कहा जाता है। मगर याद रखिए, ज़ैनब भी अली की शहजादी है, हुसैन भी अली का शेर है। दोनों की परवरिश एक घर में, दोनों की माँ एक है, दोनों का बाप एक है, दोनों का नाना एक है, दोनों का घराना एक है, दोनों की शानें बड़ी अजीम है। मैं अजमत और शान पे बात नहीं कर सकता, उतना वक्त नहीं है मुझे भी लंबा सफर करना। बस इतनी गौर से मेरी बात सुने। हुसैन खेमे में, सैयदा ज़ैनब आदमी हुसैन, खैर तो है, क्या बात है? आंख में आंसू थी, कहा क्यों रोए? कहा इस ख्याल ने रुला दिया, सबकी तैयारियां माँ ने कराई है, काश मेरी भी माँ फातिमा होती। आज हुसैन माँ के हाथ तैयार होके जाता। कैसे जिगर गुर्दे के मालिक हैं ये लोग, कैसे हिम्मत वाले। काश माँ फातिमा होती। हजरत फिज़ा हुसैन, दुख न कर, मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास माँ नहीं, ऐसा कर तू मुझे माँ मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूँ। तैयारी हो रही है। हजरत फिज़ा एक चादर निकाल के लाई जो खातून जन्नत की चादर थी, कहा हुसैन इसे सर पे बांध लो, इसी को माँ की दुआ समझ लेना। हुसैन तैयार हुए, जाने लगे। फरमाया ज़ैनब, जी भैया। कहा सारी औरतों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। अगले जुमले सुनना। फरमाया था, मेरी शहादत के बाद ज़ैनब मेरी लाश पे बेपर्दा ना आना। किसने कहा ये? जिंदगी में खाते खाते उसकी बात समझो, हुसैन की फिक्र को। कहा कि मेरी लाश पे नंगे सर ना आना। वो फरमाया ज़ैनब, मैं करबला के मैदान जा रहा हूँ, मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। तुझे देख के लोग पर्दा सीखेंगे, मुझे देख के मुस्तफा का दीन सीखा जाएगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन बेपर्दा मेरी लाश पे ना आना। मुझे बताओ, ताजिया बड़ा है कि हुसैन बड़े? बोलो, बोलते क्यों नहीं यार? वजह की बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूं जिसकी इजाजत है। जिसकी इजाजत है, मैं उस ताजिए की बात कर रहा हूं। यानी कि मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ, तो नक्शे से रोजे के साथ बड़ी है। तेरा रिश्ता बड़ा है या हुसैन का ज़ैनब से रिश्ता बड़ा है? बोलो, बोलते रहिए ताकि समझ में आए। मैं जानता हूँ मैं कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मिजाज ही ऐसा मेरा, क्या करूँ? मेरे बदन से ये कड़वाहट नहीं जाती, क्योंकि न मैं चापलूसों में रहा हूँ और न मुझे चापलूसी आती है। मिजाज ऐसा है, इतना कड़वा बोल के जाऊँ ताकि कब्र तक नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें मेरी एक एक बात याद रहनी चाहिए। बताओ, रिश्ता मेरा हुसैन से ज्यादा है कि ज़ैनब का? किसका? ज़ैनब। हजरत ज़ैनब का। हुसैन कह रहे आना मत। हुसैन कह रहे बहन, मेरी लाश में घोड़े भी दौड़े ना, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना। अल्लाह, लाशों के टुकड़े हो जाए, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना है। ये अहद मेरा इमाम अपनी बहन से ले रहा है। चलने लगे ना, तो कहती है हुसैन जरा आओ ना, मैं तुम्हें चूम लूं। हर दिन ज़ैनब हुसैन के हाथ चूमती थी। आज हुसैन बड़े, बहन ने भाई का सीना चूमा, और हुसैन जब भी चूमते थे बहन की पेशानी चूमते थे। आज जब रुखसत हुए तो कलाई चूमी। हुसैन कहते हैं ज़ैनब, आज तक तुमने कभी सीना नहीं चूमा, आज क्यों चूमा? फिर आप कहती है, फिर आपने भी तो कभी मेरी कलाई नहीं चूमी, आज क्यों चूमी? बात बड़े दर्द की है। रिश्ते निभाना सीखो यार, निभाना सीखो। मेरा हुसैन कहता, ज़ैनब मैंने कलाई इसलिए चूमी है कि मेरी शहादत के बाद इन्हीं हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी, और इतनी सख्त बंदी होंगी कि वो खून छलक आएगा। हुसैन उस वक्त मक्तल में होगा, हुसैन उस वक्त शहीद हो चुका होगा। इसलिए पहले पहले उन कलाइयों को चूम रहा हूं जिन कलाइयों पे दीन की जिम्मेदारी रह जाएगी। का
कहा तुमने सीना क्यों चूमा? कहा हुसैन मैं जानती हूँ कि तेरी शहादत के बाद मुझे पर्दा नहीं छोड़ना है, तेरे सीने पे घोड़े दौड़ेंगे, मैं पर्दा छोड़ के बाहर नहीं आऊंगी। हुसैन मैं पहले पहले तेरा सीना चूम रही। जब बहन को रुखसत किया हुसैन ने, कहा जाओ अब तुम्हारा खुदा हाफिज है। जिस घोड़े पे मेरा हुसैन बैठा, मुर्रिखीन ने लिखा उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था, और हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, और फिर हजरत अली की मीरास तकसीम हुई तो फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। इस घोड़े की खासियत ये थी, जब इस पे मेरा इमाम बैठता था तो ये हवा से बातें करता था। लोग कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुझे पता है हलीमा की बीमार ऊंटनी पे मेरा नबी बैठता है तो वो हवा से ज्यादा तेज चलती है। फिर मुर्तजिज पे तो मेरा हुसैन बैठा करता था। हाँ, वो ऊंटनी इसलिए तेज चलती थी क्योंकि उसके ऊपर नबियों का इमाम बैठा है, और मुर्तजिज इसलिए दौड़ता था, ये कहता था मेरा नसीब देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे ऊपर वो बैठा, क्या कहने, कंधे के ऊपर बैठा रहा। आज वो मेरे ऊपर बैठा, ये मुर्तजिज की आदत थी। लेकिन आज जब मेरा इमाम आया ना, मुर्तजिज पे बैठे, कोई भी हो परदेश जाते हो ना, अपनों की आंख में आंसू होते। मैं हर बंदे से बात करना चाहता हूँ। करबला कोई किस्सा नहीं है, कड़ी हुई कहानी नहीं है। करबला लहू से वो लिखी हुई कहानी है कि जिसकी मोहब्बत में क़यामत तक भी रोया जाए तो उनकी कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता। बात कान खोल के एक बंदा सुन ले। कोई जितनी चाहे नहीं तहकीक लेकर के आ जाए, हमारे लिए आला हजरत की तहकीक काफी है। हमारे इमाम ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए तो अब किसी की ये तहकीक मानेंगे नहीं कि वो गुस्ल करके करबला में गए थे। अभी तबसरे चल रहे हैं। मैं कहता हूँ करबला को समझिए, एक साथ नहीं करें, बस इतना कहो कि करबला में दर्द के साथ शहीद हो गए, बात खत्म कर दो। मैंने खुल के कहा था तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए तो तेरी सास मुझे बताती है एक्सीडेंट हुआ तो सर दीवार में पहले लगा था, बाद में गोनी लगी थी, फिर घुटना लगा, फिर नाक लगी, फिर दांत निकले, फिर जब सीधा किया तो सीना फटा हुआ था। मैंने कहा तेरा हादसे में मरता है तो तू उसकी बातें ऐसे बताता है। हुसैन ने तो एक एक गिन गिन के दीन के लिए दिया है, और हंस हंस के दिया है, मुस्कुरा के दिया है। हम उनकी शहादत बयान करते गए तो कलेजों में पानी क्यों हो जाया करता है। सुन जरा, मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा है, मुर्तजिज के ऊपर हुसैन सवार हुआ है। आपने जल्दी से लगाम खींची है क्योंकि देख रहे थे उम्मे रुबाब शहरबानो, उम्मे लैला, ये सारी खवातीन दरवाजे पे है। शहरबानो भी पर्दे की ओर से देख रही है। हुसैन ये चाहते थे जल्दी कर मुर्तजिज, कहीं ऐसा ना हो सब्र के बंधन टूट जाएं, लोगों की चीखें निकल जाएं। जितना जल्दी हो सके मुझे इनके बीच से करबला के मैदान में ले चल। आपने जैसी एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, एक नहीं दो नहीं, यहाँ तक लिखा गया है कि 13 मर्तबा मेरे हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं गया था, मेरे इमाम ने कहा था मुर्तजिज हम जानते हैं कि तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन सुन हम करीम इब्ने करीम हैं, किसी पर ज्यादती नहीं करते हैं, चाहे तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, चाहे तो मक्का लौट जा, तेरी मर्जी है। ये कह के जैसी आपने सीन से पैर निकाला है, मुर्तजिज की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन ना कह सका। गोया उसने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी मैं ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूँ अगर असहाबे कहफ के कुत्ता बातें कर सकता है तो हुसैन का घोड़ा बातें क्यों नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह, कर दिया तो जो है सारे लोगों को। चलूं थोड़ा सा आगे, जरा कहते हैं या हुसैन, जोर जोर से या हुसैन, या हुसैन। भाई थोड़ा रहम करो यार, नीचे वाले तो खोल दो कम से कम। तो जो है सारे लोगों की और जोर से है। नहीं आप न डरिएगा, अभी तक किसी सुभान अल्लाह कहने वाले को पुलिस ने नहीं पकड़ा और ना कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा है। और जिसने जोर से या रसूल अल्लाह कहा उसका बिजली का बिल ज्यादा थोड़ी आया। बोल क्यों नहीं रहे, जरा बोलो या हुसैन, या हुसैन।
توجہ ہے نا سارے لوگوں کو؟ بہت غور سے سنیے گا. حسین مرتضی گھوڑے پہ سوار ہے, کہہ رہے تیری مرضی ہے, چاہے نہر فرات چلا جا, چاہے جا کے پانی پی لے, پیاس بجھا لے. یہ کہہ کے جب پیر نکالنے لگے نا مرتضی کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی. اس نے کہا حسین تو آقا ہے, میں نوکر ہوں, اور نوکروں کو یہ تانے نہیں دیے جاتے. کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ کہا میری مجبوری بڑی نہیں ہے. کہا کون سی مجبوری ہے؟ کہا میری مجبوری یہ ہے حسین مجھے پیاس کا تانا نہ دے. کس نے کہا کہ مجھے پیاس کا احساس ہے؟ مجھے پتا ہے صبح سے 71 لاشیں لا کے آپ تھک گئے ہو. میں جانتا ہوں ابھی خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, ام رباب پیاسی ہے, شہربانو پیاسی ہے, خانواد نبوت کی شہزادیاں پیاسی ہے. پھر میں پانی کا ذکر کروں؟ کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ کہا مجبوری ہے. کہا کیا؟ کہ تو ایک بار کہتا چل ذرا مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ. تیری سکینہ 2 بار ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے مرتجز میرے بابا کو ابھی نہ لے کے جانا, جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. بیٹیوں کے پیار بڑے نرالے ہوتے ہیں, تجھے کیا پتا سکینہ کا رشتہ حسین سے کیا ہے؟ تو کیا جانے حسین نے کس درد کے ساتھ بیٹی کو رخصت کیا ہوگا. ہاں آپ کبھی پردیس جاتے ہو تو دیکھنا, خدا کی قسم ابھی امتیاز بھائی آئے, باہر سے آئے تھے, میں نے دیکھا گود میں بچے کو لیے گھوم رہے. میں سوچنے لگ گیا کہ تھکے ہیں, باہر سے سفر کر کے آئے, بچے کو گود میں اٹھا لیا. میں آپ سے بتاؤں خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا, میں نہیں جانتا ہوں کہ بیٹیوں کے رشتے میں کتنا درد ہوتا ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے. آج بھی میں نکلنے لگا, میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا ابو کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جلسے میں. کہا ابھی تو آئے ہو پھر جانے لگ گئے ہو؟ کہا میں تم سے بات نہیں کروں گی, تم میرے پاس نہیں رہتے ہو, وقت نہیں گزارتے ہو. خدا کی قسم بیٹیوں کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں. حسین کی سکینہ کی طرف مرتجز نے کہا تھا حسین معاف کر دے, تم ایک بار کہتے ہو چل سکینہ, 2 بار کہتی ہے مرتجز. ابھی میرے باپ کو لے کے نہ جانا, جو گیا کہ واپس نہیں آنا ہے. آج آخری بار مجھے بابا سے جی بھر کے پیار کرنا ہے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. میرے حسین نے مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا. ایک روایت میں 4 سال عمر حضرت سکینہ کی ہے, دوسری روایت میں 7 سال ہے. اگر 7 سال میں روایت لے لی جائے تو کتنے بڑے بچے 7 سال کے ہوتے ہیں. بیٹیوں کے رشتے کو سمجھو. میرے حسین نے مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا, بیٹی نے اشارہ کر کے کہا بابا ایک بار آ جا, ایک بار آ کے سینے سے لگا جا, جانتی ہوں میں آج کے بعد تیرا سینہ نہیں ملے گا. جب اتنا کہا ہے میرے حسین نے سواری موڑی حضرت سکینہ کے خیمے کی طرف. آج دل کہہ رہا تھا حسین جی بھر کے سکینہ سے پیار کرنا ہے, اس لیے کہ آج کے بعد سکینہ نہیں ملے گی. سکینہ وہ ہے جو حسین کے گلے کا تعویذ ہے. بیٹیاں آپ جانتے ہو اکثر باپ کے ساتھ سویا کرتی ہیں, باپ کے ساتھ رہا کرتی ہیں. پھر حسین تو وہ ہے جن کے گھر سے بیٹیوں کا احترام سکھایا گیا ہے, جن کے گھر سے بیٹیوں کا پیار بتایا گیا ہے. پھر کس پیار سے حسین نے سکینہ کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارے ہوں گے. جب حسین سواری سے نیچے اترے گئے دل میں خیال آتا ہے حسین آج بیٹی کو جی بھر کے پیار کر اٹھا لے, گود میں لگا لے سینے سے, جیسے کہ یوں بازو حسین نے پھیلائے ہیں. بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا ابا دکھ نہ کر, صبح سے 71 لاشیں اٹھا کے تیرے بازو تھک گئے ہیں. ابا میں تیری بیٹی ہوں, میں گود میں اٹھانے کی تکلیف نہیں دوں گی. ابا مہربانی کر گود میں نہ اٹھا, خدا کی قسم یہ بیٹیاں ہوتی ہیں